यस सर, आप सभी को मेरा प्रणाम। साथियों, आज हमारे लिए एक बहुत ही क्रूशियल पीरियड में हम गुजर रहे हैं कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत कुछ बदलाव रेगुलर हम देखते आए हैं, लेकिन अब जो बदलाव आईआरडीए ने करना चाहा है, ये बहुत ही खतरनाक हमें लग रहा है। और उसी को लेकर के मैंने कल राजेश चेतन साहब से रिक्वेस्ट किया था कि जो कुछ बदलने जा रहा है वो हमारे ग्रुप के लिए बहुत ज्यादा खराब होने वाला है। इसके लिए मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया था कि इस पे हमें चर्चा करनी चाहिए। तो इन्होंने कहा कि इस पे किसी एक्सपर्ट को बुलाइए। हमारे बीच एस.वी. श्रीनिवासाचारी जी मौजूद हैं। मैंने उनसे कल रिक्वेस्ट किया और उन्होंने तुरंत हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और उन्होंने कहा ठीक है, मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। बेटे गर्म कर देना। और मैं अब ज्यादा समय उनके परिचय में नहीं लूंगा, बस मैं इतना सा बताना चाहूंगा कि आईआरडीए ने एडवाइजरी कमेटी होती है और एस.वी. श्रीनिवासाचारी को 2 बार एडवाइजरी कमेटी का मेंबर बनने का मौका मिला है। पूरे हिंदुस्तान के सिर्फ एक एजेंट को उसका मेंबर बनाया जाता है, उसमें से श्रीनिवासाचारी को 2 बार मौका मिला है। श्रीनिवासाचारी हमारे लियाफी के अध्यक्ष भी रहे हैं और काफी सशक्त लीडर हैं। इनकी नॉलेज कितनी है और कितनी ये मेहनत करते हैं, ये अभी इनके जो हमें प्रेजेंटेशन देंगे उसी से हमें जानकारी मिल जाएगी। मैं श्रीनिवासाचारी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना वक्तव्य अभी प्रारंभ करें, क्योंकि हम काफी लेट हो चुके हैं। श्रीनिवासाचारी साहब। क्यों? अब वो 100 हो गए बेटे, अब थोड़ी होगा। फेसबुक पे देख ले या इस पे आ जा। सर श्रीनिवासाचारी है ना मौजूद? अभी मेरे को दिख नहीं रहे। हेलो। Hello. हाँ सर, यस Yes, sir. So, thank you, Kuldeep ji. Thank you so much. Sir, good morning, sir. Good morning, friends. Let me extend my sincere apology for joining late in this session. As I have informed to Mr. Kuldeep Bhunia, yesterday night 11 o'clock we got information that an appointment is there with the Ministry of Finance, Ms. Srimati Nirmala Sitharaman at Kamareddy town, which is almost 120 kilometers away from Hyderabad. So after 11 o'clock, we prepared the representation, and 1:30 we proceeded from Hyderabad. At 3:30 a.m. we reached the Kamareddy, and morning 6 o'clock we went to minister's residence, and ultimately we got an appointment. We represented the matter with regards to the gratuity enhancement and the reduction of the rate of interest on the loans of the policyholders. And also we have brought to the notice of the Honorable Minister with regards to the recently the exposure draft has been issued by the IRDA chairman with regards to the payment of the commissions, remunerations and rewards to the insurance agents and intermediaries. So that it delayed for joining me in this meeting. So let me extend my hearty congratulations to the organizers for holding this kind of the meeting. Certainly this kind of the meeting is going to helpful for the insurance agents in the country. So there is a saying in the Sanskrita, that is nahi gnanena sadrusham pavitram iham vidyate. Nothing is equivalent to the knowledge. And at the same time, asatoma sadgamaya, tamasoma jyotirgamaya, mrityorma amrutangamaya. O Lord, lead me from untruth to the truth. O Lord, lead me from the darkness to light. O Lord, lead me from the death to immortality. So let us start with this prayer and this session, because the topic which was given, certainly I'll try to share the latest information with regards to the IRDA, with regards to the Government of India, and also to the allies of India. So far, whatever the knowledge, whatever the information which I'm having, I will try to share with all of you, because this never-ending process. चारी सर, आप हिंदी भी बोल लेते हैं क्या? हाँ, हिंदी भी बोल सकता हूँ मैं।
तो थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए साहब। आपके जैसा हिंदी में बात नहीं कर सकता हूँ, फिर भी मैं प्रयास करूंगा। ये भाषा से भी आपकी भावना, आपका दिल को पहुंचने के लिए मैं तो प्रयास करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, ठीक है। हाँ, सब सर, मैं बहुत आभारी हूँ। आप लोग मुझे एक मौका दिया आप सब लोगों से मिलने के लिए, आप सब लोगों से थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन LIC agents are also any private insurance company agents also there in this group. Let me know, please. ये अपना 100 मेंबर्स का ऑडियंस में, ये सेशन में कोई ओनली LIC एजेंट्स है, नहीं तो और कोई प्राइवेट इंश्योरेंस का एजेंट्स भी इसमें शामिल है, थोड़ा सा मुझे बताना चाहिए। ऑर्गेनाइजर्स को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं। ओनली LIC एजेंट है सर, ओनली LIC एजेंट। Okay, thank you so much, sir. So that my job will be easy to focus on that particular subjects and all these things. Sir, today, so I think my time is 1 hour, no? Because it is delayed 20 minutes, 27 minutes. So shall I complete my session by half an hour or 40 minutes? Sir, 40 minutes, 40 minutes. 40 minutes. Okay, sir. Thank you so much. Thank you so much. So, sir, अभी मैं we are all very fortunate to be associated with the Life Insurance Corporation of India. आज जो LIC में जो अपन इसमें शामिल हो रहा है, ये LIC के साथ अपन जो काम कर रहा है, तो there is a saying in the Bhagavad Gita, Yogakshemam Vahamyaham. That means the responsibility, the welfare of the public is the responsibility of the corporation. तो इसके हिसाब से अपन LIC में काम कर रहे हैं सब लोग। तो अगर LIC का अगर ब्रांड इमेज एक बार देखना चाहे तो ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन is the largest insurance company in the world. मैं ये बताना चाहता हूं आपको, आज करीब 30 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स आर इन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मींस ये तो 30 करोड़ और थोड़ा सा प्राइवेट कंपनीज का और पॉलिसीज भी अगर ला लिए तो ये और 5 करोड़ बढ़ जाएगा। That means the United States of America population is, as per my knowledge, it is not greater than 34 crores. So including LIC, 30 crores in 28.9, करीब 29 crores are the individual policies, and if we include the group insurance policy holders, these two becomes more than 34 crores policies. So that means why I am saying my एक क्यों बोल रहा है इतना बड़ा इंश्योरेंस कंपनी है LIC के लिए, तो द स्ट्रेंथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन इज ग्रेटर देन द पॉपुलेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका में जितना पॉपुलेशन है उससे ज्यादा केवल LIC में पॉलिसी होल्डर का संख्या है। सो दैट वी आर फॉर्चुनेट टू बी एसोसिएटेड विद द कॉर्पोरेशन LIC। आप बताइए, अभी हम सब लोग बोल रहा है LIC में तो इतना एजेंट्स है, करीब 13,26,000 एजेंट्स एज ऑन टुडे है LIC कॉर्पोरेशन में। तो हर साल एजेंट्स ज्वाइन होता है और साल एजेंट्स टर्मिनेट भी होता है। तो आफ्टर डिलीशन एंड एडिशन ये 13,26,000 का एजेंट्स अभी अपने साथ है। तो 13,26,000 एजेंट्स में अगर ये लोग का इनकम, अगर ये लोग का फाइनेंशियल पोजीशन अगर अपन ये स्टैटिस्टिक्स अगर अपन लिए समझो, तो लास्ट टाइम मेरे सेंट्रल ऑफिस में जब मीटिंग हुआ था वहां से हम थोड़ा सा ये इंफॉर्मेशन लिया है। ये इंफॉर्मेशन क्यों लिया बोले तो हम सब लोग बोलते, हमारा नेताजी भी बोलता, लियाफी में भी बोलते, सब लोग वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 13,26,000 एजेंट। ये 13,26,000 इसमें एजेंट्स में कितने लोग काम कर रहे, कितने लोगों का इनकम है, ये लोगों का इनकम कहां से है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो अभी भी LIC में 10,000 रुपीज पर एनम, दैट मीन्स
800 से 850 से पे मंथली कमीशन अर्न करने वाला LIC में एजेंट्स इतना लोग है 1,69,595 एजेंट्स, समझे। 10,000 बिलो पर एनम इनकम कमीशन जो अर्न कर रहा वो लोग 1,69,595 एजेंट्स है। अगर 10,000 से 25,000 कमीशन लेने वाला इंश्योरेंस एजेंट्स LIC में है 1,41,972 एजेंट्स। 25,000 से 49,999 रुपीस कमीशन पर आनम लेने वाला 1,93,131 एजेंट्स है। और 50,000 से 1,00,000 कमीशन लेने वाला LIC में करीब 2,33,828 एजेंट्स है। 1,00,000 से 2,00,000 कमीशन कमाने वाला LIC में 1,94,363 एजेंट्स है। 2,00,000 से 5,00,000 कमीशन कमाने वाला 1,68,080 एजेंट्स है। 5,00,000 से 10,00,000 कमीशन अर्न करने वाला केवल 68,658 एज। 5,00,000 से 10,00,000 पर एनम कमीशन कमाने वाला LIC में एजेंट सिर्फ 68,658 एजेंट्स है। और मोर देन 10 lakhs, it may be 10 lakhs, 15 lakhs, 20 lakhs, 50 lakhs, 1 crore, 2 crores, 3 crores, 5 crores, 6 crores, 7 crores. You know very well who is the agent in the country who is earning more than 6-7 crores per annum. Can anybody tell me? Mr. Bharat Parekh from Nagpur, his income is more than 6 crores, 7 crores. Almost his family income and everything, it reached more than nearly 10 crores per annum. Like that, 10,00,000 कमाने वाला, 10,00,000 कमीशन कमाने वाला आज LIC में सिर्फ 28,788 एजेंट्स है। अगर ये सब देखने के बाद मुझे ऐसे मालूम पड़ा है 13,26,000 एजेंट्स में more than 5 lakhs agents are earning below 50,000 per annum. Can we take up them into a professional? No. अगर प्रोफेशनल को अगर जानना चाहे तो अगर प्रोफेशनल में अपने पास, मेरे पास स्टैटिस्टिक्स भी है। प्रोफेशनल में आप लोग सब लोग बोलता है क्लब मेंबर्स का, जो क्लब मेंबर्स में कितना लोग है। कॉर्पोरेट क्लब मेंबर इज द हाईएस्ट क्लब इन द कॉर्पोरेशन। जो कॉर्पोरेट में क्लब मेंबर में 2020-21 इसमें देखिए 321 कॉर्पोरेट क्लब मेंबर एजेंट्स है। और बाकी का गैलेक्सी एजेंट्स अगर देखे तो लास्ट ईयर इसका 1484 एजेंट्स है। गैलेक्सी का देखे तो चेयरमैन क्लब मेंबर अगर देखे तो 42,444 एजेंट्स है। अगर जोनल मैनेजर्स का क्लब मेंबर्स देखे तो सिर्फ ओनली 33,362 एजेंट्स है। डिविजनल मैनेजर क्लब मेंबर्स को देखे तो 53,688 एजेंट्स है। ब्रांच मैनेजर क्लब मेंबर्स को देखे तो 40,377 एजेंट्स है। डिस्टिंग्विश क्लब मेंबर्स को देखे तो 16,678 एजेंट्स है। पूरा मिला के 2020-21 में 1,88,364 क्लब मेंबर एजेंट्स आर देयर इन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। This is 2021. When it comes to the 21-22, it has come down from 1,88,000 से 1,81,000 का क्लब मेंबर्स को कम हो गया। मैं यही 10 साल का अगर स्टैटिस्टिक्स लेने के बाद मैं ऐसा सोचा था whether the agents are going into professional way or the agents are working for comfortable income। ये क्लब मेंबर्स का स्टैटिस्टिक्स मैं देखने के बाद मुझे मालूम पड़ा है अगर 2011-12 बिकॉज दिस इज 2022 ऑलमोस्ट लास्ट 10 साल का मैं स्टैटिस्टिक्स लेने के बाद मुझे ऐसे मालूम पड़ा था 2011-12 में टोटल क्लब मेंबर्स का संख्या था 2,61,757 था। तो अराउंड 2,61,767 क्लब मेंबर्स था कब 10 साल के नीचे। आज का स्ट्रेंथ कहां से गिर गया 1,81,000। ये 11 साल में, ये 10 साल में ये छोड़ के हर साल न्यू एंट्रीज आर देयर इन द क्लब मेंबरशिप। जब न्यू एंट्रीज जो हो रहा है वो भी कम से कम 30 to 35,000 पर एनम न्यू क्लब मेंबर्स आर ज्वाइनिंग इन द क्लब मेंबर। अगर वो भी लिए तो 10 साल का करीब 3.5 लाख का क्लब मेंबर्स।
तो ये 3.5 लाख के 261 मिला के अगर अपन कैलकुलेशन कर तो आज क्लब मेंबर्स का स्ट्रेंथ रहना था, इसका तो स्ट्रेंथ करीब मोर देन 6 लाख का क्लब मेंबर रहना था। मगर ये पॉजिटिव ग्रोथ नहीं है क्लब मेंबर्स में। ये पॉजिटिव ग्रोथ क्लब मेंबर्स में क्यों नहीं है बोले तो अपना अर्निंग्स जैसा कम हो रहा, अपना प्रोफेशनल भी ऐसे ही कम होते जा रहा, इसलिए तो नेगेटिव ग्रोथ आ जा रहा अपने क्लब मेंबर्स में। जब नेगेटिव ग्रोथ क्लब मेंबर्स में आए तो ये कॉर्पोरेशन के लिए भी अच्छा नहीं है और अपना एजेंट्स कम्युनिटी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो अपना एक आई रियली अप्रिशिएट द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दिस मीटिंग। I heard Mr. Kuldeep Bunia, every monthly meetings and weekly meetings, fortnight meetings you are conducting and educating the people. Yes, this kind of the education, it is to be required under any circumstances. Offering education and literacy to someone is the highest form of the dharma. तो जो भी आप दान करेगा, ये दान में अगर आप अन्नदान भी करेगा और कन्यादान भी करेगा और जो भी दान करेगा, गोदान भी करेगा, सब दान से कौन सा अच्छा दान, which is the highest form of the dharma दान is, that is the vidya दान. I really appreciate these organizations who are offering this vidya dana to all the insurance agents. My dear friend, अभी आपको बताया एजेंट्स का सिचुएशन क्या है, क्लब मेंबर प्रोफेशनल एजेंट्स का सिचुएशन क्या है। अब इसको हुए अपना कमीशन का अगर देखना चाहे तो एवरी ईयर अपना कमीशन परसेंटेज इज डिक्लाइनिंग। जब 211-12 में अपना कमीशन का परसेंटेज था करीब 9% था, 9% के बाद में आ गया 7.31%। लास्ट ईयर द रेशियो ऑफ द कमीशन हैज कम डाउन टू 5.31। नो डाउट द क्वांटम ऑफ द कमीशन इज इंक्रीजिंग but the percentage ratio of the commission is not increasing. Why? Where is the fault? Why when business is increasing, when quantum of the commission is increasing, when the tax paid to the government of India is increasing, when dividend is increasing, when our income profit surplus of the corporation is increasing, why the agents commission earnings are not increasing? That is the major drawback that we have to focus and concentrate. See, earlier जब प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज नहीं आया था, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज 2000 में ऑलमोस्ट दे एंटर इनटू द इंडियन इंश्योरेंस मार्केट। जब तक अपन LIC मोनोपोली था, जब LIC में एक कन्वेंशनल पॉलिसी सिर्फ वही रहता था, उधर दूसरा कोई पॉलिसी रहता था भी नहीं। उसके बाद जब प्राइवेट इंश्योरेंस जब मार्केट में आया तब अपना यूलिप पॉलिसीज बेचना शुरू कर दिए। तो यूलिप पॉलिसी में बेचते हुए थोड़ा सा अपने को एजेंट्स भी थोड़ा सा डिस्करेज होकर वो यूलिप पॉलिसी बेचना बंद कर दिए। सो बाद में क्या हुआ, मैनेजमेंट पे LIC का भी चेंजेस आ गया। जैसा मार्केट शेयर बनाना चाहे तो वो लोगों का सिंगल प्रीमियम का जरूरत हो गया। तब पेंशन का पॉलिसी का कंसंट्रेशन फोकस ज्यादा हो गया था, तो एन्युटी पेंशन पॉलिसीज बेचना शुरू कर दिए। बाद में क्या हुआ और सिंगल प्रीमियम पॉलिसी बेचना शुरू कर दिया। आजकल तो ब्रांच मैनेजर ने यही बोलता है, तो आप कितना सिंगल प्रीमियम लाया, 2 लाख लाया, 10 लाख लाया, 1 करोड़ लाया, बट नोबडी आस्क्ड हाउ मच कन्वेंशनल प्रीमियम यू ब्रॉट, हाउ मच कमीशन अर्न बाय द एजेंट। ये सब देखने के बाद ये मैनेजमेंट का भी फोकस, अपना भी फोकस, ये कन्वेंशनल पॉलिसीज बेचने से इससे शिफ्ट होके सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी में अपना फोकस चलेगा। इसको देखने के बाद लास्ट टाइम में मैं पूरा 10 साल का एक प्रीमियम का मैं ये स्टैटिस्टिक्स लेने के बाद ऐसा मालूम पड़ा, जो ऐसा सिंगल प्रीमियम बेचना 2011-12 में अपना सिंगल प्रीमियम LIC एजेंट पूरा तमाम एजेंट्स ने बेचा है 8,709 करोड़। तो लास्ट ईयर 2020-2021 में इसका सिंगल प्रीमियम बेचना 28,291 करोड़। दैट मीन्स 20,000 करोड़ का सिंगल प्रीमियम तो बेचना शुरू कर दिए, 20,000 ज्यादा प्रीमियम लाया। मगर व्हेन इट कम टू द नॉन सिंगल प्रीमियम में 2011 में अपने 28,681 करोड़ लाया था नॉन सिंगल प्रीमियम। तो नॉन सिंगल प्रीमियम में एजेंट्स का भला हो जाएगा। ये हाईएस्ट कमीशन ऑफ द फर्स्ट ईयर कमीशन यू आर गोइंग टू गेट, सेकंड एंड थर्ड ईयर यू आर गोइंग टू गेट 7.5%, सब्सिक्वेंटली अप टू मैच्योरिटी आपको 5% का कमीशन हर साल मिलेगा। तो बाद में ये 28,681 नॉन सिंगल प्रीमियम 10 साल के नीचे लाए तो लास्ट ईयर 2020-2021 में इसका प्रीमियम आ गया 27,576। दैट मींस दिस फिगर इज लेस देन
10 साल के नीचे जो नॉन सिंगल प्रीमियम लाया था उससे भी कम अभी इतना नॉन सिंगल प्रीमियम ला रहा। मेरा रिक्वेस्ट आपका एजेंट सबके लिए मेरा रिक्वेस्ट एक है, you sell the annuity policies, you sell that single premium, absolutely no problem, but at the same time don't forget to market the products, the conventional products, because that is the real insurance concept is involved in the conventional policies. मैं ये सबको मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आपका फोकस रहना चाहिए ज्यादा से ज्यादा नॉन सिंगल प्रीमियम में रहना चाहिए। नहीं, सिंगल प्रीमियम पे आपको लाना पड़ेगा। क्यों लाना पड़ेगा? अगर कस्टमर के पास आप गए तो यू शुड नॉट कम विथ एम्प्टी हैंड्स। आपको होना चाहिए सिंगल प्रीमियम जो कस्टमर इज रेडी टू इन्वेस्ट, बिकॉज एलआईसी से ज्यादा कोई अपना एन्युटी और गारंटी रिटर्न्स तो कहीं आएगा नहीं। होपफुली यू मे गेट लिटिल बिट परसेंटेज ऑफ द इंटरेस्ट ऑन द बैंक डिपॉजिट। नाउ ये भी खत्म हो चुका है। ऑलमोस्ट एलआईसी का जो एन्युटी सिंगल प्रीमियम में जो रिटर्न आता है उससे भी ज्यादा आज बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट में लास्ट मंथ में अगर वो देख लिए तो 5%, 5.3% और 4.5% का इंटरेस्ट एफडी में दे रहा था, उससे ज्यादा तो यील्ड अपने पास आ रहा। इन एडिशन टू दैट द कस्टमर इज गोइंग टू गेट द इंश्योरेंस and also is going to get the exemption from the tax after the maturity and also this premium payment tax. So that my sincere advice, you try to focus. आप लोग को मेरा को अपील करता हूं, आप कन्वेंशनल पॉलिसी का ज्यादा बेचने के लिए आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। उसके साथ मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप सिंगल प्रीमियम नहीं करना चाहिए, एन्युटी प्लान नहीं करना चाहिए। यू हाउ टू डू एन्युटी प्लान, यू हाउ टू डू सिंगल प्रीमियम। अपने को लास्ट ये मिनिमम बिजनेस गारंटी जब था 12 पॉलिसीज, यही बोलता था सब लोग 1,12,000 मुंडी, ऐसे ही बोलता था ना, 1,12,000 मुंडी बोलता था। तो अभी मैं इसके कॉन्सेप्ट में मैं बोलना चाह रहा हूं, अगर 12 पॉलिसीज आपने लाया तो 10 पॉलिसीज कन्वेंशन ला लिए, 2 पॉलिसीज अगर यूलिप भी ला लिए, सिंगल प्रीमियम भी ला लिए और एन्युटी भी ला लिए। बट डोंट फॉरगेट टू मार्केट द कन्वेंशनल पॉलिसी। दिस इज द ब्रेड एंड बटर फॉर द इंश्योरेंस एजेंट। अगर ये नहीं करेगा, आप जितना भी बिजनेस करेगा आपका तो रेन्युअल कमीशन नहीं बढ़ेगा, बिकॉज द रेन्युअल कमीशन इज द मेन फैक्टर। अगर आपको ऑफिस अलाउंस लेना चाहिए तो वो टोटल कमीशन का जरूरत है, अगर कुछ कार एडवांस लेना चाहिए तो रेन्युअल कमीशन का जरूरत है, अगर कोई मैरिज एडवांस और फर्नीचर एडवांस, हाउसिंग लोन, एनी एडवांस यू वांट टू टेक फ्रॉम द एलआईसी, इट ऑल डिपेंड अपॉन द रेन्युअल कमीशन। आपको रेन्युअल कमीशन जब तक बिल्डअप नहीं करता चाहिए तो तब तक आपका ये एडवांसेस भी मैक्सिमम लेवल में आपने यूटिलाइज नहीं कर सकता। इसलिए तो मैं ये आपको एडवाइस कर रहा हूं, ये रेन्युअल कमीशन बढ़ाइए। आप एक ही काम करिए, फर्स्ट ईयर कमीशन, जो फर्स्ट ईयर कमीशन आता है आपका ऑफिस मेंटेनेंस, आपका एम्प्लॉइज का सैलरीज, जो रेन्युअल कमीशन आता है वो आपका पेंशन समझो। यू रिटेन योर पेंशन बाय वे ऑफ इंक्रीजिंग योर रेन्युअल कमीशन। तो ये बात मैं आप सब लोगों को बोलना चाहता था। तो ये सब ऐसा स्टैटिस्टिक्स है। मैं एक बता रहा हूं, आज एलआईसी एजेंट अगर इतना चेंजेस आ रहा, क्या एलआईसी एजेंट टिकेगा इंडिया में? 100% LIC agent is going to be sustained. Yes, no doubt. There are so many challenges are coming in insurance industry, but the people who are going to be well trained, well acquired the knowledge, they are going to be sustained in the insurance industry. Otherwise, it is very difficult for the insurance agent to sustain in the insurance industry in the days to come. तो अपने को ये होना चाहिए, ये knowledge होना चाहिए, प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए, मार्केटिंग स्किल होना चाहिए। सबसे अपन वी शुड बिकम ए फाइनेंशियल एडवाइजर। आज तक आप लोग जो सोच रहा एलआईसी एजेंट, नो, यू कन्वर्ट योरसेल्फ एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। तो फाइनेंशियल एडवाइजर के क्या होना चाहिए? आप देखिए, अगर एलआईसी में इतना पॉसिबिलिटी है नहीं है, यस 100%। Why private insurance companies are entered in the Indian insurance market? You tell me. Because अपना इंश्योरेंस पेनेट्रेशन नहीं बढ़ रहा। तो यह सब लोग बोलता है इंडिया में इतना इंश्योरेंस पोटेंशियलिटी है, ये फॉरेन कंट्रीज में कहीं भी नहीं है। इसलिए तो फॉरेन कंपनीज आर जॉइनिंग इन द इंश्योरेंस, इंडियन इंश्योरेंस मार्केट। क्यों हो रहा है ये? कहीं को हो रहा है? तो आप सोचिए, अभी अपना इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? 134 करोड़ पॉपुलेशन।
तो 134 करोड़ पॉपुलेशन में अगर एलिजिबल इंश्योरेंस फॉर द पॉपुलेशन अगर देखे तो अगर 0 एज में आज भी बच्चा बच्ची पैदा हुआ उसके लिए तो अपन बीमा कर सकते हैं, और 60 इयर्स तक जीवन लाभ का पॉलिसी ले लिए समझो उसको भी अपन बीमा कर सकते हैं। दोज हु आर हेल एंड हेल्दी, दोज हु आर फाइनेंशियली साउंड, दे कैन बी इंश्योर्ड प्रॉपर्ली। अगर 60% देखिए आउट ऑफ 134 करोड़ में, as per my calculation, as per the statistics available with different policies including annuities, single premium, traditional policies, unit policies, all policies come together, 90% of the 90 crores of population are eligible for insurance in India. So that इंडिया में इतना बारिश पड़ रहा है इंश्योरेंस का, बीमा का बारिश इतना हो रहा है, अगर कोई ग्लास लेके अगर पानी पकड़े ना उसके पास ग्लास की पानी आएगा, अगर कोई थोड़ा सा लोटा बना के लोटा को ले जाएंगे ना तो लोटा ही भरेगा, और थोड़ा सा स्ट्रेंथ यूज करके थोड़ा सा सफर करके अगर आपने एक छोटा सा एक क्या बोलता हूं बकेट, अगर बकेट लेके अगर आप लेके ना बकेट का पानी मिलेगा, और थोड़ा सा प्रयास करके एक बड़ा गंगालम बोलता हमारा तेलंगाना तेलुगु में, बहुत बड़ा पॉट अगर वो भी लेके अगर बारिश पे अगर रख दिए ना तो वो भी भर जाएगा। इट्स ऑल डिपेंड द इंश्योरेंस एजेंट्स एफर्ट्स, जितना आप एफर्ट्स करेगा, जितना आप प्रोस्पेक्टिंग करेगा, जितना आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा, जितना आपका रिलेशन कस्टमर से रहेगा, वो तब डेफिनेटली टॉप टीओटी एजेंट इन द कंट्री। दैट इज प्रैक्टिकली इट इज पॉसिबल। अगर सब लोग बोलता है अरे क्या है यार ये तो बीमा तो बेचना मुश्किल हो गया, अरे कहीं जाता है वो बोलता नहीं देता नहीं, these are all things are coming। आप बताइए किस बिजनेस में ये हर्डल्स नहीं है, बताइए कहां कंपटीशन नहीं है, आप बताइए। तो फिर भी अपन ये अगर आप, मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर नया घर में आपने एंटर किया है, जब नया घर में कुफल ताला निकाल के डोर निकाल के एंटर होगा, पूरा डार्कनेस रहता, तो आप इमीडिएटली आप क्या करेगा, जैसा स्विच बोर्ड के पास जाएगा, एक स्विच डालेगा, लाइट बल्ब नहीं आएगा, दूसरे स्विच डालेगा फिर भी लाइट नहीं आएगा, तीसरे स्विच लगाएगा ये यूज करेगा, वो जब भी वो लाइट नहीं आएगा, फिर क्यों आप ये 2 3 4 5 स्विच को आप ये कर रहा है, बिकॉज बोलता है बरोबर ये लाइट जलने वाला है या लाइट आने वाला है, मगर इसका स्विच कहां है अपने को नहीं मालूम, इसलिए 1 2 3 4 5, जब 5 का स्विच आप दबाए ना तो ऑटोमेटिकली लाइट आएगा। दैट मीन्स इफ यू prospect 10 people, if you approach 10 prospect, certainly there are minimum 2 prospects are going to be converted into customer। तो अपने को प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट भी होना चाहिए, इस लेवल से अपने को काम करना चाहिए। तो आप बोल रहे अगर इंडिया में इतना पॉपुलेशन होने के बाद 90 करोड़ का एलिजिबल पॉपुलेशन इज देयर इन इंडिया, तो अभी तक तो अपना पास 30 करोड़, अगर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज का अगर ऐड करे तो वो एक 4-5 करोड़, 35 करोड़ में आप देखिए अपना 30 करोड़ में कितने लोगों के पास 2 पॉलिसी है, 3 पॉलिसी है, 4 पॉलिसी है, 5 पॉलिसी है। अगर ये सब पूरा कैलकुलेशन करे तो और भी कम हो जाएगा अपना स्ट्रेंथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर। तो और बाकी है 60 करोड़ पॉपुलेशन अपने लिए इंतजार कर रहा है इंश्योरेंस के लिए। अगर ये इंश्योरेंस बीमा अगर आप करना चाहे तो आपको रॉ मटेरियल होना चाहिए, जैसा बिजनेस बनाने के लिए ये, नहीं तो एक कंपनी होना चाहिए, एक लैंड होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, करंट होना चाहिए, इसके लिए सब तो कैपिटल होना चाहिए। अगर LIC एजेंट के लिए क्या होना चाहिए, क्या कुछ पैसे का जरूरत है, क्या ऑफिस का जरूरत है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का जरूरत है, क्या इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत है, क्या आपको होना चाहिए, आपको रॉ मटेरियल होना चाहिए। आपको रॉ मटेरियल क्या बोलता है, जितने दिन इंडिया में भारत में पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा जब तक आपको रॉ मटेरियल मिलते ही जाएगा। तो रॉ मटेरियल तो आपको लोग होना चाहिए, अपने को होना चाहिए, ह्यूमन बींग्स होना चाहिए। जब तक ये पॉपुलेशन बढ़ रहा, अभी तक तो 60 करोड़ पॉपुलेशन को तो बीमा नहीं करा है, तो ये बीमा नहीं करे इसके वजह से ये लोग तो कर सकते हैं। ओनली थिंग वी आर नॉट गोइंग टू अप्रोच द कस्टमर। अब जितने लोग हाई कस्टमर्स को अपने को ये हाई नेटवर्थ कस्टमर्स को अपने अप्रोच कर रहे हैं,
very few people. Those who are just I want to share this kind of the statistics. And coming to the some sort of the recent developments in the Insurance Regulatory Development Authority. तो आपने देख लिए एक लास्ट मंथ एक पूरा न्यूज़पेपर में आया, डिस्क्लोजर ऑफ द कमीशन ऑफ एजेंट्स ऑन द फेस ऑफ द पॉलिसी बॉन्ड। ये कहां से आया मैं बता रहा हूं। एक 4 इंश्योरेंस कंपनीज, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज, ये प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज में एक है एचडीएफसी इंश्योरेंस कंपनी, दूसरा है केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, तीसरा है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, चौथा है चोलामंडलम इंश्योरेंस कंपनी। ये 4 नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ये पूरा एक वर्किंग कमेटी बना के एक 50 पेजेस का एक रिकमेंडेशन दिया। ये रिकमेंडेशन में क्या दिया है, यो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ाना चाहिए और कस्टमर शुड नो the actual expenses incurred, particularly एजेंट का कमीशन जितना आ रहा है वो पॉलिसी बॉन्ड में अपन ट्रांसपेरेंसी बताने के लिए पॉलिसी बॉन्ड में अपने को प्रिंट होना चाहिए। ये रिकमेंडेशंस दिया। जब एट द सेम टाइम we had a discussion, our management at the central office, our chairman also, and also our managing director and higher management, they have told very clearly, अपना representatives और joint action committee representative represent करने के बाद it has been clearly informed, नहीं ये जो होने वाला है it is called open architecture। वो open architecture अलग है। ये पॉलिसी बॉन्ड में ये जो कमीशन प्रिंट करना चाहते हैं, ये में LIC हम किसी हाल से एजेंट के साथ रहेंगे, हम किसी हाल से ये प्रपोजल को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। बाद में थोड़ा सा इंश्योरेंस काउंसिल बोल के अपने बॉम्बे में है, ये इंश्योरेंस काउंसिल जैसा एजेंट का एसोसिएशन बनता, पूरा इंश्योरेंस कंपनीज का जितना भी 24 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज और LIC जितना भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, दे आर ऑल बिकम वन यूनियन दैट इज कॉल्ड लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल। तो वो लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल इंपॉर्टेंट कंसर्न्ड अथॉरिटी से हमने बात किया, वो लोग भी क्लियर किया है, हम तो किसी ऐसा कुछ सजेशंस तो हम रिकमेंडेशंस तो हम दिए नहीं, मगर ये वर्किंग कमेटी जनरल इंश्योरेंस काउंसिल से ये 4 लोग कंपनीज के एक वर्किंग कमेटी रिकमेंडेशन दिया। इसमें रिकमेंडेशंस में ये बताया तो पॉलिसी होल्डर का एजेंट का कमीशन और इंटरमीडिएट का कमीशन इसने हर पॉलिसी बॉन्ड में और इंटरमीडिएट एजेंट का नाम भी हर पॉलिसी बॉन्ड में छपाना चाहिए, प्रिंट करना चाहिए, ये रिकमेंडेशन ने दिया। बाद में हम जॉइंट एक्शन कमिटी में डिस्कस करके वी हैव अप्रोच्ड द कंसर्न्ड अथॉरिटीज इन द इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो लॉट ऑफ प्रेशर्स हैव कम फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अल्टीमेटली ऐसा IRDA चेयरमैन को ऐसा सिचुएशन आया था, इसके लिए तो कुछ प्रेस नोट देना पड़ेगा, तो IRDA चेयरमैन ने एक प्रेस नोट दिया। बाद में ये प्रेस नोट में ये बोला, हमने अभी तक ऐसा कुछ डिसीजन तो नहीं लिया है, ऐसा जो प्रपोजल्स आ रहा, अगर ऐसा जो प्रपोजल्स में इसमें जो आ रहा है, अगर ऐसा अगर डिसीजन लेना चाहे तो जितना भी स्टेक होल्डर्स है इंश्योरेंस कंपनीज में, वो लोगों को पूरा कंसल्ट करके हमें डिसीजन लेगा। मगर IRDA चेयरमैन ये नहीं बताया, तो ये पॉलिसी बॉन्ड में कमीशन प्रिंट करने का हम किसी हाल से नहीं करता नहीं बोला, मगर जब हम डिसीजन लेगा आप लोगों को कंसल्ट करेगा। दिस मीन्स दैट आल्सो इट इज अंडर द कंसिडरेशन। ये प्रपोजल उन की IRDA के मन में है, तो इसको अगर अपन देखना चाहे तो हमें एक रिप्रेजेंटेशन भी दिया है। ये रिप्रेजेंटेशन में देते हुए हमें बोला है, जो कमीशन का जो आता है एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट, एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट में क्या क्या आता है? एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट जो आता है कमीशन एंड रेम्युनरेशन एंड रिवार्ड्स पेड टू द इंश्योरेंस एजेंट एंड रेम्युनरेशन पेड टू द रीइंश्योरेंस कंपनीज एंड आल्सो दिस ऑपरेटेड एक्सपेंसेस बोल के, दैट इज आल्सो कंसिस्टिंग ये जो सैलरीज पेड टू द स्टाफ एंड बेनिफिट and also other expenses of the management for the promotion and development of the products. These are all comes under the expenses of the management. हमें ये पूछा था, हमें राइट को अगर कस्टमर का प्रोडक्ट में कितना खर्चा हो रहा है
ये खर्चा अगर बताना चाहे तो खाली एलआईसी, खाली इंश्योरेंस एजेंट का कमीशन क्यों बताता है? अगर आपको बताना चाहे तो एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट में जो भी आता है इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एजेंट का कमीशन सब बताइए। ऑल द एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर द इंश्योरेंस दिस प्रोडक्ट यू आल्सो मेंशन, इट आल्सो शुड बी प्रिंटेड ऑन द पॉलिसी बॉन्ड बोल के हमें रेगुलेटर को हमें रिटर्न में हम जवाब दिए। सो सब कंपनीज में हम जवाब दिए। तो बाद में हम ये भी यही बात बोला था, अगर आप कमीशन पॉलिसी बॉन्ड में प्रिंट करें, it is nothing but encouraging the policy holder for bargaining either part of the commission or whole of the commission paid to the insurance agent। जब तो ये हो जाएगा ना, अगर मेरे को इतना कमीशन आ रहा तो ये कमीशन का पूरा पॉलिसी बॉन्ड में प्रिंट होने के बाद वो पॉलिसी होल्डर देखने के बाद वो बोलेगा अरे मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूं, अगर आपको 35% कमीशन 35,000 आ रहा तो मेरे को तो 35 में अगर 20,000 तो भी दे दो, नहीं तो 35 तो भी दे दो, ये बात बोलेगा ना। तो ये क्या होता है, ये हम ये इंश्योरेंस बिल में जब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी में हम जो डिपोजिट एविडेंस डिपोज किया था, तब ये सेक्शन 40 सबसेक्शन 2 which is deals with the rates of commission prescribed the Insurance Act 1938। वो पॉलिसीज का कमीशन जो रेट्स उसमें बताया वो पूरा निकालने का, वो पूरा सेक्शन उठाने के लिए ये किया। बट एट द सेम टाइम वह एक सेक्शन भी है, सेक्शन 41। आज अभी भी आपका प्रपोजल फॉर्म में देखते हैं, वो प्रपोजल फॉर्म में सेक्शन 41 का दिखता है। ये क्या है बोले तो, अगर कोई भी रिबेट ऑफर करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, अगर कुछ पार्ट और फुल कमीशन अगर शेयर करेगा, इफ इट इज प्रूव्ड द पनिशमेंट विल बी एक्सटेंडेड अप टू 10 lakhs फॉर द एजेंट एज पर द सेक्शन 41 ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938। अगर आप प्रिंट करना चाहे तो इज इज नथिंग बट एनकरेजिंग द कस्टमर टू बार्गेन द कमीशन फ्रॉम द एजेंट। तो ये इट इज आल्सो कम्स अंडर वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 41। ये जो सेक्शन 41 जो लिखा हुआ है 1938 में, इसको वायलेशन करने के लिए ये प्रयास कर रहा, इसलिए तो हम ये बोल रहा है इसको नहीं करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए। ये बात हमें बताने के बाद तो फाइनली इट वाज टेम्पररीली इट वाज केप्ट अबियंस। मैं समझता हूं ये कंप्लीट निकाले नहीं चुका है, ये केप्ट इन अबियंस। ये है दूसरी बात। दूसरा एक अभी हमें मालूम पड़ा है, तो ये लोग का मन में ये कि आप लास्ट टाइम में एक 10-15 दिन में 2 रेगुलेशंस निकाले, एक है कॉर्पोरेट एजेंट्स का रेगुलेशन और एक है ब्रोकर्स इंश्योरेंस रेगुलेशन। ये 2 रेगुलेशंस में देयर वाज रेस्ट्रिक्टेड। आप अगर कॉर्पोरेट एजेंसी लेना चाहे तो आप इतना ही कंपनी, वो 3 कंपनी हो 4 कंपनी हो जो IRDA जो आपको अलाउ करता, उतना ही कंपनी का आपको इंश्योरेंस का एजेंसी इंश्योरेंस बीमा करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं करना चाहते। जब ब्रोकर का रेगुलेशन आया तो ब्रोकर का रेगुलेशन में भी क्या बोलता है, जैसा कॉर्पोरेट एजेंट का जितना कंपनी का बीमा करता है उससे कम ब्रोकर वाला ये कंपनी इसका इंश्योरेंस कर सकते, 2 और 3। तो इसको क्या किया है, ये 4 कॉर्पोरेट एजेंट्स का मैक्सिमम 9 इंश्योरेंस कंपनीज का बीमा कर सकते हैं वो कॉर्पोरेट एजेंट, और ये ब्रोकर है वो 6 इंश्योरेंस कमीशन इंश्योरेंस कंपनीज का बीमा कर सकते। यही सोच अभी ये लोगों के दिमाग में है। इसको सोच भी, एक प्रपोजल भी ऐसा लोगों के ये सब तो सोशल मीडिया में जहां रेगुलेटर्स के हम सुन रहा है, तो अगर इंश्योरेंस एजेंट को भी ये कंपनी है, अगर मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनीज को अगर काम करे तो कैसा रहेगा। दिस इज द प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन। ये लोगों का सोच में है, ये अभी तो कंसिडरेशन, ये रिकमेंडेशन, ये रेगुलेशन अभी नहीं बना है, मगर ये सोच तो अभी हो रहा है। अपने कुछ सोचना पड़ेगा। अगर इसमें मिक्स्ड ओपिनियंस मेरे पास आ रहा है, अगर LIC एजेंट को अगर परमिशन दिया तो 4 इंश्योरेंस कंपनीज का बीमा कर सकते, तो इसको बोलता है ओपन आर्किटेक्चर। अगर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज आप 3-4 इंश्योरेंस को आप काम कर सकते हैं और LIC को भी कर सकते हैं, प्राइवेट इंश्योरेंस को भी करते हैं, LIC एजेंट आल्सो वर्क फॉर LIC और प्राइवेट इंश्योरेंस भी काम कर सकते हैं। इसमें से मेरिट्स अगर डिमेरिट्स देखे तो इसमें थोड़ा सा मुश्किल की बात हो रहा है। थोड़ी लोग बोलता है अरे चारे सब ब्रोकर को अलाउ कर रहा है, कॉर्पोरेट को अलाउ कर रहा है, तो हमको क्यों अलाउ नहीं करते, हम भी पूरा 4-5 कंपनी का इंश्योरेंस बीमा कर सकते हैं। मगर आप सोचिए, अगर I'm proudly saying that LIC agents are so fortunate। क्यों बोले तो आज तक पूरा दुनिया में
statutory protection for the insurance commission payable to the hereditary commission payable to the insurance agents आज तक कहीं भी नहीं है. Only LIC agents have been statutorily protected by the agents regulation. इससे पहले 1972 था, बाद में ये एजेंट्स रेगुलेशन 2016-17 में बनाया था पार्लियामेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से. These two regulations have been designed as per the section 49 of the LIC Act 1956. इसके हिसाब से आज LIC एजेंट के पास एक हक है, एक राइट है, अपना कमीशन अपन ले सकते, अपना हेरिडिटरी कमीशन ले सकते. अगर इत्तेफाक से कोई एजेंट मर गया, ये एजेंट का जितना भी बीमा किरा, उतना बीमा का कमीशन जितने साल वो पेबल है, उतना साल उसका बीबी को, बच्चों को हेरिडिटरी कमीशन पेमेंट करना चाहिए. दिस इज वन वे. और क्लब रूल्स, ऑफिस अलाउंस, group insurance, medical insurance, telephone charges, this kind of all the facilities LIC has given, but this kind of the facilities are not available with the private insurance companies. मैं देख रहा हूं कितना एजेंट्स टर्मिनेट होता जा रहा है. 5 साल करे तो हेरिडिटरी रिन्यूअल कमीशन ERC बोलता है, थोड़ी लोग 5 साल के पहले ही टर्मिनेट हो जा रहा. कोई लोग 5-6 साल करने के बाद वो लोग को मालूम भी नहीं रहता हेरिडिटरी कमीशन, जब भी वो लोग पूछता नहीं, ये लोग देता नहीं. But in LIC it is not happening. LIC it is not happening. अगर आप LIC का एजेंट लेके अगर ओपन आर्किटेक्चर अगर सिस्टम आए, अगर आप दूसरे कंपनीज को अगर काम करना चाहे तो LIC भी पूछेगा, अरे भैया एजेंट जी, अगर आपने तो इतना दिन मेरे पास काम किया, अपना LIC कंपनी के लिए काम किया, इसलिए तो मैं पूरा ये फैसिलिटीज, ये क्लब मेंबरशिप, ऑफिस अलाउंस, हाउसिंग लोन, ग्रेचुइटी, मेडिकल इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस, जो चाहे टर्म इंश्योरेंस हम याद दे रहे हैं आपको. अगर आप ये कंपनी छोड़ के और 3-4 अलग प्राइवेट कंपनी से करे तो अगर मुझे क्यों देना पड़ेगा ये पूरा फैसिलिटीज? तो इसमें से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है. Joint Action Committee also it is working on this. We are also seriously working. We will also going to have a debate on this, and we will seek more opinion from the more people and top agents and intellectuals and all these things. If at all such kind of the open architecture आएगा, तब हम सब लोग मिलके एक डिसीजन लेगा, इसको किसी हाल से, किसके हिसाब से अगर होना चाहिए, अगर ओपन आर्किटेक्चर रहना चाहिए तो, अगर ओपन आर्किटेक्चर रहे तो इसको अपना हैश ऑफ बेनिफिट्स को प्रोटेक्ट करते कैसे आगे बढ़ना, इसके ऊपर हम सोच दे रहा है. एक दूसरी बात, तीसरी बात एक आया परसों हमारा जॉइंट एक्शन कमेटी में बहुत सारा डिस्कशंस हुआ था. आप लोग मालूम है, एक 7-8 दिन के नीचे लास्ट वीक IRDA ने एक एक्सपोजर ड्राफ्ट ऑन कमीशंस, रेम्युनरेशन, रिवॉर्ड्स पेएबल टू इंश्योरेंस एजेंट्स एंड इंटरमीडियरीज, ये इसमें देने के बाद इसको सब स्टेक होल्डर से ओपिनियन, सजेशंस, कमेंट्स पूछा. 14 सितंबर के अंदर इसका कमेंट्स एंड सजेशन होना चाहिए. ये जो रेगुलेशन, ये जो एक्सपोजर ड्राफ्ट है, ये खाली 8 पेजेस का ड्राफ्ट है. तो हम सोचा ये पूरा, सब लोग, थोड़े से लोग बोल रहा है, अरे चारी साहब फर्स्ट ईयर कमीशन तो 35% से कम करके 20% किया है, रिन्यूअल कमीशन तो 5% के लेके 10% किया है, और इसमें ये छोड़ने के बाद परसिस्टेंसी बोलता है. परसिस्टेंसी बोले तो ये जितना पॉलिसी LIC ने बेचा, वो पॉलिसीज में 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद कितना पॉलिसीज फोर्स में है, ये देखने के लिए, अगर परसिस्टेंसी बढ़ाने के लिए ये थोड़ा सा इंसेंटिव सिस्टम ये ड्राफ्ट में दिया है. ये मुझे भी अच्छा लग रहा है. ये क्यों बोले तो, इसमें क्या बोले तो, अगर 5 साल आप करे सो पॉलिसी फोर्स में रहेगा, ये 5 साल का प्रीमियम जितना भी पेमेंट किया है 2% इंसेंटिव देगा. अगर 10 साल इस फोर्स में रहेगा, फिर बाकी का और 5 साल के बाद उसको 2% इंसेंटिव देगा जो भी प्रीमियम पेमेंट किया. अगर 15 साल ये पॉलिसी परसिस्टेंसी में रहेगा, फोर्स में रहेगा, और अनदर 2%, ऐसा 2 to 3 टाइम्स ये इंसेंटिव के हिसाब से जो पॉलिसी फोर्स में रहेगा वो पॉलिसी का कमीशन मिलेगा. रियली दिस इज वेरी गुड. वी आल्सो वेलकम दिस काइंड ऑफ द प्रपोजल. तो अभी अपने को मुश्किल कहां से आ रहा है? तो अभी इसमें क्या किया है, ये 3 ऑब्जेक्ट दिया है. ये क्यों कमीशन को रिड्यूस कर रहा, तो वो रिवाइज कर रहा. तो इसमें बताया ये लोग ऑब्जेक्टिव्स में, एक ऑब्जेक्टिव इसमें है, इसका टू एनहांस द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द रेगुलेशंस, और बाकी का दूसरा एक दिया है
to facilitate the insurers and giving the liberty for framing the commission's regulation, commission's board approved policy. तीसरा ऑब्जेक्टिव ये है, it is affecting, it is proposing to increase the insurance penetration in India. ये तीन ऑब्जेक्टिव्स को लेने के बाद ये लोग क्या किया है, आप समझे ना, ये आपको समझना पड़ेगा इसमें। ये के कमीशन, दूसरे है रेम्युनरेशन, तीसरा है रिवॉर्ड। ये तीन चीजों में अगर आप देखें तो कमीशन किसको देता है? जो इंश्योरेंस एजेंट, बीमा अभिकर्ता जो बिजनेस लाएगा उसको कमीशन देता है। रेम्युनरेशन किसको देता है? ये रेम्युनरेशन देगा इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियर्स कौन है? ब्रोकर्स है, कॉर्पोरेट एजेंट्स है, वेब एग्रीगेटर्स है, IMF है और डायरेक्ट मार्केटिंग है। ये जितने लोग ऑनलाइन पॉलिसी से, दिस आर ऑल कम्स अंडर द इंटरमीडियर्स। ये लोगों को पेमेंट जो करता है इन द शेप ऑफ द रेम्युनरेशन, दिस इज कॉल्ड रेम्युनरेशन। रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड्स क्या है? द रिवॉर्ड डिफाइन करता ऐसा है जो ग्रेच्युटी पेमेंट, ग्रुप इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, टेलीफोन चार्जेस, ऑफिस अलाउंस, टर्म इंश्योरेंस, these are all comes under the rewards. आप समझे ना? कमीशन, रेम्युनरेशन, रिवॉर्ड्स। तो इसको अभी ये ड्राफ्ट में ये लोग ऐसा दिया है, ये पूरा मिला के फर्स्ट ईयर में 20% कमीशन दे सकता है। तो 20% कमीशन, अगर इससे पहले अपने को फर्स्ट ईयर में कितना मिलता था? अपने को 35% कमीशन मिलता। तो थोड़े लोग मेरे से बात करता था, मैं सही बताना चाहता हूं, आई डोंट वांट टू टेक एनीबॉडीज नेम्स, बट दिस इज हैपनिंग इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। वो लोग बोलता है, अरे चारी साहब अभी जितना भी 35% दे रहा, हमारे पास थोड़े लोग हैं तो 45% रिबेट दे रहा, 50% रिबेट दे रहा। तो बोला अभी अगर 20% ये करे, समझो ये पॉलिसी में अगर हम बता सकते कस्टमर को, देखो हमारा पूरा कमीशन पूरा कम कर दिए, इसलिए तो 20% दिया है, ये 20% रिबेट देखते। दिस इज ऑफ द रिकॉर्ड, आई एम टेलिंग यू दिस इज द ऑफ द रिकॉर्ड। ऐसा कुछ रिबेट देने वाला है तो ऐसा कुछ, ये प्रोविजन सेक्शन 41 है, 10 लाख तक तो पनिशमेंट दे सकते हैं। तो थोड़े लोग बोल रहा है ये 10% कमीशन दे रहा ना, रेन्युअल कमीशन, ये 10%, 5% तो रेन्युअल कमीशन था, अभी 10% रेन्युअल कमीशन आ रहा, अपना रेन्युअल कमीशन बढ़ जाएगा, रेन्युअल कमीशन हिसाब से बढ़ जाएगा। ओके, I am also going to accept it. मैं एग्री करूंगा आपसे, 5% से 10% रेन्युअल कमीशन देगा, बट वेयर इज द गारंटी? क्या रेगुलेटर गारंटी देगा 10% कमीशन आपको देगा? नहीं। ये क्या बोला है? मैक्सिमम कैप ऑन कमीशन पेमेंट। मैक्सिमम कैप बोले तो 10% भी दे सकते, 5% भी दे सकते, 6% भी दे सकते और 4% भी दे सकते, जितना हो सकते उतना दे सकते। तो ये देयर इज नो गारंटी। क्यों बोल रहा हूं मैं ये गारंटी नहीं है? और इसमें और एक इंक्लूड किया है। इसमें क्या इंक्लूड किया? अगर ये एनेक्सर में जो 20% फर्स्ट ईयर, 10% रेन्युअल कमीशन देना चाहे तो ये लोगों का इंश्योरेंस कंपनीज का जो एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट रहता, मैं अभी बताया ना आपको, जैसा सैलरीज पेड टू द एम्प्लॉइज and the expenses incurred for the development of the product of the company, products of the insurance company और commission paid to the insurance agent, ये पूरा मिला के अगर 70% के ज्यादा रहे तो ये अनेक्सर में जो 20% फर्स्ट ईयर और 10% रेन्युअल कमीशन मैक्सिमम दे सकते, इट्स नॉट मिनिमम, मैक्सिमम दे सकते। और एक बताया, दो एक्सपेंसेस ऑफ द मैनेजमेंट अगर 70% के अंदर आए तो ये लोगों को ये एक ऑप्शन दिया, ये अनेक्सर 1 में जो कमीशन ने प्रेस्क्राइब किया वो भी दे सकते, नहीं तो जैसा इंश्योरेंस कंपनी बोर्ड अप्रूवल पॉलिसी के हिसाब से तो कमीशन भी दे सकते। तो अल्टीमेटली अगर एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट को गए तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर अगर 1 घंटा 1.5 घंटा भी अपन बात करना सकते हैं उसका एक्सपेंसेस को लेने के लिए, तो अब वी आर नॉट गोइंग टू टच दैट। मगर इससे क्या होता है, ये 100% तक एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट दिया है। इवन टिल टुडे द एक्सपेंसेस ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मेरे पास क्लियर रिपोर्ट्स है,
इतना, अगर सैलरीज जितना पेमेंट किया है और कमीशंस कितना पेमेंट किया है और एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट कितना हुआ, ये पूरा परसेंटेज देखने के बाद LIC का एक्सपेंसेस ऑफ द मैनेजमेंट का परसेंटेज है 14.61%, इतना 14% से ज्यादा सा है। वेराज प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज का एक्सपेंसेस ऑफ द मैनेजमेंट अगर देखे तो 18% से ज्यादा है। तो the LIC is keeping very control on the expenses of the management। अभी क्या कर रहा है, ये 100% से 70% करना चाहे तो ये कैसा हो सकता है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने 1956 से 66 ईयर्स से काम कर रहा है। 66 ईयर्स में जितना एम्प्लॉइज है, जितना 13 लाख का एजेंट है, इतना कोई इंडिविजुअल इंश्योरेंस कंपनी के पास है नहीं। वो लोग नजदीक भी नहीं आ सकता। पूरा प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को अगर ला के रख दिए तो जब भी even till today I'm proud to say that Life Insurance Corporation is the leader of the insurance company in the world, in the country now। क्यों बोले तो आज भी अपना मार्केट शेयर ये सबको मिलाने के बाद उससे ज्यादा नंबर ऑफ पॉलिसीज देखो और फर्स्ट ईयर कमीशन प्रीमियम देखो, ये दोनों में पूरा प्राइवेट कंपनी से ज्यादा अपना मार्केट शेयर का लीडर अपन है। ये मार्केट शेयर रिटेन कर रहा है। अभी ये लोग का सब मेरे को समझ में आ रहा है। तो LIC को बीट करने के 20 साल से ये लोग प्रयास कर रहा है। ये 20 साल से जो प्रयास कर रहा है LIC को कैसा बीट करना, कैसा बीट करना, कैसा बीट करना। अभी मैं एक बताना चाहता हूं, आज LIC में जितना भी कमीशन प्रीमियम लाएगा, आज मैं बता रहा हूं, लास्ट ईयर अराउंड करीब 1,92,000 ऑफ द प्रीमियम वी ब्रॉट। उसमें से करीब 55,000 रुपीज फर्स्ट ईयर न्यू बिजनेस लाया था। ये सब में 93% of the business has come from the tied agents। tied agents को ने अपना पूरा सब लोग, और अल्टरनेटिव चैनल से करीब 7% से ज्यादा नहीं आए। ये अल्टरनेटिव चैनल्स कौन है? ये कॉर्पोरेट एजेंट्स है, ब्रोकर्स है, वेब एग्रीगेटर्स है, डायरेक्ट मार्केटिंग है और ऑनलाइन सेल्स है, और जितने भी आप देखो सबसे 7% से ज्यादा नहीं आए। मगर प्राइवेट कंपनीज में ये डिफरेंट रूट पे चल रहा है। प्राइवेट कंपनीज में 50 से ज्यादा परसेंटेज अल्टरनेटिव चैनल्स, बैंकर्स, ब्रोकर एसोसिएशंस और अल्टरनेटिव चैनल से इंश्योरेंस बिजनेस आ रहा। वेरास टाइड एजेंट से थोड़ा सा, उससे कम टाइड एजेंट से बिजनेस आ रहा। तो ये लोग पे मैं समझता हूं, इट इज माय ओनली ओपिनियन, बिकॉज LIC को मारने के लिए जो प्रयास कर रहा मैं समझ रहा हूं। अगर जब तक LIC को मार नहीं सकते और दूसरा कंपनी बढ़ नहीं सकते। अगर बढ़ना चाहे तो मार्केटिंग में कंपटीशन के हिसाब से अगर कंपटीशन करिए, जरूर अपना इंश्योरेंस बीमा बढ़ जाएगा। मगर ये बैकडोर टैक्टिस से कभी भी किसी को नहीं बांध सकते। मैं इसलिए तो ये बोला ना, योगक्षेमम वहाम्यम, दिस इज द वर्ड, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द होली भगवत गीता। जब तक कृष्ण है, जब तक भगवान है, जब तक भगवत गीता रहेगा, तब तक LIC को ये प्रोटेक्ट करते ही रहेगा। तक इंश्योरेंस LIC को और एजेंट्स को कोई भी धक्का नहीं लगा सकते। बट सब्जेक्ट टू, जब तक एजेंट काम करेगा तब तक कोई इसको धक्का नहीं मारेगा। तो वी हैव टू वर्क, बिकॉज हाईएस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द शोल्डर ऑफ द इंश्योरेंस एजेंट। क्यों बोले तो आज चेयरमैन को देखो, MD को देखो, ब्रांच मैनेजर देखो, किसी ऑफिशियल को देखो, 60 साल होने के बाद ये लोग रिटायर हो जाता है। अपने कितने चेयरमैन को देखा, कितना ब्रांच मैनेजर को देखा, कितना SDM को देखा है, कितने भी एम्प्लॉइज को देखा है, 60 साल के बाद ये लोग कोई भी नहीं रहेगा। मगर LIC में परमानेंट कौन रहेगा? Only 2 people are going to stay in the Life Insurance Corporation of India। One is policy holder, another one is जब तक सांस है, till the last breath LIC एजेंट काम करते रहेगा, तब तक नहीं मरेगा, तब तक LIC में जिंदा रहेगा LIC एजेंट। तो इसलिए तो highest responsibility lies on the shoulder of the insurance agent, not on anyone। तो अभी ये एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट में 2006 में सेम गाइडलाइंस, जब PS विजयन चेयरमैन था IRDA का, जब ये मैं इसके पहले और एक बताना चाहता हूं, जब अपना 1938 एक्ट में जो सेक्शन 40 सबसेक्शन 2 और सेक्शन 44 डील्स विद द हेरिडिटरी कमीशन, ये पूरा सेक्शंस को निकाल के पूरा इंश्योरेंस एक्ट में से निकाल दिया। जब इंश्योरेंस एक्ट में निकालने के बाद ये लोग क्या किया है, these powers given to the IRDA to make the regulation with regards to the payment of the commission and all these things। तो पार्लियामेंट में पास हुआ ये इंश्योरेंस लॉस अमेंडमेंट बिल में सेक्शन 40 के हिसाब से ये प्रोविजन अभी है। तो अभी ये IRDA ने क्या कर रहा है,
ये कमीशन रेगुलेशंस में करते सकोर अभी 2016 में सेम रेगुलेशंस लाया पेमेंट ऑफ कमीशंस में। वो पेमेंट ऑफ कमीशंस में 1938 में जो इंश्योरेंस एक्ट में था, 1956 LIC एक्ट था, 1972 एजेंट्स रेगुलेशन में था, बाद में 2016 एजेंट्स रेगुलेशंस आया। ये सब लेने के बाद 2016 में IRDA ने रेगुलेशन बनाया कमीशन कैसा कैसा पेमेंट कर रहा, सिर्फ 6 साल के नीचे। मैं ये बताना चाह रहा हूं वो 2016 में क्या है। 2016 में क्या है, अगर टर्म इंश्योरेंस का पॉलिसी बेचे तो मैक्सिमम 40% कमीशन फर्स्ट ईयर देना चाहिए और रिन्यूअल कमीशन 10% देना चाहिए। अगर ये रेगुलर प्रीमियम से अगर पॉलिसी अगर करे तो उसमें अगर 5 साल का टर्म का पॉलिसी दिए तो उसमें 15% फर्स्ट ईयर कमीशन रहना चाहिए। अगर 6 साल का पॉलिसी भेजे तो 18% रहना चाहिए, और 7 साल का पॉलिसी रहे तो 21% रहना चाहिए, 8 साल का रहे तो 24% रहना चाहिए, 9 साल का रहे तो 27% रहना चाहिए, अगर 10 साल रहे तो 30% रहना चाहिए। अगर 12 साल के ज्यादा जो भी टर्म रहेगा रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी कन्वेंशन में, इसको मैक्सिमम 35% फर्स्ट ईयर कमीशन देना चाहिए। ये पूरा सबको, ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर नहीं है, फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स टिल मैच्योरिटी रिन्यूअल कमीशन 7.5% देना चाहिए। मुझे आप बताइए मेरे को, ये एक बात है, कभी ने आज तक इंप्लीमेंट किया क्या IRDA रेगुलेशन? मेरे को बताइए। 6 साल का अगर पॉलिसी बेचे तो 18% आपको आ रहा क्या? 7.5% रिन्यूअल कमीशन आ रहा क्या? ये क्यों LIC एजेंट को बदनाम करता है? इतना कमीशन ले रहा है, इतना कमीशन ले रहा है, इतना कमीशन ले रहा है, कहां से ले रहा? हमें डिस्कशन किया है। अगर आपको, अगर एक कस्टमर के पास गया, एक प्रॉस्पेक्ट के पास गया तो इमीडिएटली आपको पॉलिसी देगा? नहीं है। अपना इन्वेस्टमेंट, LIC एजेंट का इन्वेस्टमेंट शुरू हो रहा है फर्स्ट प्रॉस्पेक्ट। उसके फर्स्ट प्रॉस्पेक्ट को कितना खर्चा होता है? एक टेलीफोन खर्च से शुरू होता, बाद में पर्सनल विजिट से शुरू होता है, जब 2 व्हीलर का न 4 व्हीलर का व्हीकल का कन्वेंस अलाउंसेस एक्सपेंडिचर डीजल का शुरू होता है, ये वो भी कस्टमर नहीं बनेगा। दूसरे प्रॉस्पेक्ट के पास बनेगा, उसका भी एक्सपेंडिचर अपन करते, वो भी नहीं करेगा। अगर ऐसा 10 प्रॉस्पेक्ट को मिलने के बाद अपने को हो रहा है ये कस्टमर, when you approach 10 prospect, only 1 person is going to become a customer. इसलिए तो मैं IRDA को यही बता चुका है। ये अब जब मैं when I was the insurance advisory committee member in the IRDA, I have very clearly told while framing the regulation, इसमें हम बताया क्यों बोले तो, अगर मेरा इन्वेस्टमेंट शुरू हो रहा है एक प्रॉस्पेक्ट से 10 प्रॉस्पेक्ट, अगर मैं 10 प्रॉस्पेक्ट नहीं मिलता, मेरे को एक कस्टमर नहीं बनता। जब आपने एक कस्टमर को 35% दे रहा, इट इज नॉट लाइक दैट यू आर 35%, you are giving 35% for meeting me all the 10 prospects so that one customer is coming to the insurance company, so that your 35% commission divided by the 10 prospects, it is only just 3.5%. This is the way we have to tell the people. बताइए, डायरेक्टली अगर आप गए कुलदीप बोनिया के पास जाए, चलो पॉलिसी दो, देगा? बताइए मेरे को। आज इंडिया में मोटर इंश्योरेंस देखे तो मैंडेटरी है RTA में। अगर आप व्हीकल का इंश्योरेंस नहीं बनाए तो चालान करता है। कितना चालान करता है? दो इट इज मैंडेटरी 75% of the vehicles are flying on the road without having the insurance. मैंडेटरी रहे तो भी ये लोग इंश्योरेंस कर रहा नहीं। तो आज तक तो इंडिया का पॉपुलेशन अभी तक इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट नहीं समझा था, इतना मुश्किल हो रहा है अपना इंडिविजुअल इंश्योरेंस एजेंट को ये बीमा कराने में, लोगों को कन्विंस करने में। मगर ये पूरा तकलीफ अपन जो उठा रहा है, जो एसी रूम में जो IRDA चेयरमैन बैठा उसको नहीं मालूम पड़ रहा है, इसलिए तो हम बोल रहा है। अभी कमीशन को छोड़ने के बाद, वो 2016 में कमीशन में ये परसेंटेज देने के बाद रिवार्ड्स का बात आया। रिवार्ड्स में बताया ना मैं, ये रिवार्ड्स में ये जो रहेगा अपना टेलीफोन चार्जेस, ऑफिस अलाउंसेस, ये पूरा इसमें रिवार्ड्स में रहेगा। वो रिवार्ड्स में क्या किया है, वो रिवार्ड्स में ये लोग ये बताया था, रिवार्ड्स में इसको सेपरेट कैलकुलेशन करना चाहिए। ये रिवार्ड में मैक्सिमम 20% देना चाहिए फर्स्ट ईयर कमीशन में। अगर समझो एजेंट ने अगर 10 लाख का प्रीमियम लाया, 10 लाख में अगर इसका एवरेज कमीशन 2 लाख आया, 2 लाख में 20% 40,000 तक इसको रिवार्ड्स में दे सकते। रिवार्ड्स में क्या क्या दे सकते? ग्रेच्युटी भी दे सकते, ग्रुप इंश्योरेंस दे सकते, मेडिकल इंश्योरेंस दे सकते, ऑफिस अलाउंस दे सकते, दीज आर ऑल। वो भी बताया 20% देने के लिए, वो भी बताया
अदर देन कमीशन, अदर देन 35 कमीशन 20% देना चाहिए। और इसमें यह भी बताया एक एक पॉलिसी से आप कैलकुलेशन मत करिए, पूरा इंश्योरेंस कंपनी में जितना भी फर्स्ट ईयर कमीशन आया उसमें 20% मैक्सिमम क्लैप लगा के उसके बीच में रिवॉर्ड्स पेमेंट करना चाहिए। तो आज 2016 में ये जो रेगुलेशन बनने के बाद आज तक 7.5% कमीशन देने के लिए हम लड़ रहे हैं, मैनेजमेंट से पूछ रहा है, मैनेजमेंट ने बता रहे हैं तो हम नहीं दे सकते। अगर इसको बढ़ाना चाहिए तो कस्टमर का और पॉलिसी होल्डर का प्रीमियम बढ़ाना चाहते, अगर आपको कमीशन, आपका कमीशन बढ़ाना चाहे तो हमको प्रीमियम को बढ़ाना चाहिए, फिर वो कस्टमर के ऊपर दबाव पड़ जाएगा तो इंश्योरेंस नहीं लेगा, तब इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कम हो जाएगा और इंडिया का इंश्योरेंस डेवलपमेंट में इसका तो नाम निकल जा चुका है। तो इसलिए तो जो 7.5% अभी नहीं दे सक रहा है, क्यों उल्लू बनाते, एक्सपोजर ड्राफ्ट बना के 10% रिन्यूअल कमीशन, अगर आपको है तो आप रेगुलेटर क्लियर इंस्ट्रक्शंस दो, 10% रिन्यूअल कमीशन मिनिमम शुड बी गिवन, इट शुड बी compulsorily adopted by the every insurance company। ये कर सकते क्या रेगुलेटर? ये नहीं कर सकते, खाली पेपर में दे सकते, ये इंप्लीमेंटेशन होता नहीं, खाली ये बहाना बताता है, ये मीडिया में पेपर में छपा होता है, ये इसका कमीशन इतना आया, इतना आया, इतना आया, क्या आ रहा है अपने को कमीशन? अगर इतना कमीशन अट्रैक्टिव कमीशन है तो हर साल को 2 लाख 3 लाख इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस छोड़ के क्यों जा रहा है? क्यों 13 लाख से अभी भी 10,000 कम नहीं, 10,000 क्यों नहीं कमा सकते पर साल? फ्रेंड्स, this is the situation prevailed in the IRDA। तो अपन lot of challenges are going come, आप फिक्र मत करिए, जितना भी challenges है और उतना मजबूत बन जाएगा। अगर शादी करने के बाद मियाँ बीबी के बीच में अगर कुछ भी डिफरेंसेस और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, वो संसार तो ठीक चलेगा क्या? जब डिफरेंसेस आएगा सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। के बाद हम LIC मैनेजमेंट से भी बात करना चाहिए, LIC मैनेजमेंट को भी कॉन्फिडेंस करना चाहिए हमको। LIC आपको मेरा उम्मीद है LIC मैनेजमेंट 100% दे आर गोइंग टू सपोर्ट द इंश्योरेंस एजेंट। दे डज नॉट वांट टू लूज द इंडिविजुअल इंश्योरेंस एजेंट। ये लोगों का जो हमेशा वो बोलते रहते हैं मैनेजमेंट में, ये एजेंट्स का हेलो 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 आवाज आ रही है। These are all the changes are taking place in the insurance industry। हमें आपको बहुत काम करना चाहिए, आप फिक्र मत करिए। आपको इंश्योरेंस का बहुत अच्छा एक मौका दिया है। अपने को देश को अगर प्रेम करना चाहे तो, अगर देश के लिए कुछ करना चाहे तो, देश के ये जो इकोनॉमिक सिचुएशन को बढ़ाना चाहे तो, ये पूरा जिम्मेदारी इंश्योरेंस एजेंट के ऊपर है। तो इंश्योरेंस एजेंट शुड बिकम ए प्रोफेशनल एजेंट। ये प्रोफेशनल बनके बीमा ज्यादा से ज्यादा बनेंगे, जितना चैलेंज है वो फेस करेंगे, मगर किसी हाल से अपने को डिस्करेज होना नहीं चाहिए। वी आर ऑल हियर, विल टेक केयर ऑफ द ऑल द प्रॉब्लम्स। You be strong enough, you try to involve more time in the procuring the new insurance business, and let us all work together and see that our esteemed Life Insurance Corporation of India should further grown in the days to come। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, एक भगवद्गीता में एक श्लोका है, कर्मण्ये व्याधिकारस्ते मा कलेषु पदाचनः मा कर्म फल हेतुर्भो माटे संगोत्सव कर्माणि। इसका अर्थ ये है, जो कर्मा करेगा, जो निस्वार्थ से काम करेगा, जो कर्मा करते रहेगा, जो ड्यूटी करते रहेगा, उसका फल के लिए देखने की जरूरत नहीं है। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बोला है, तुम्हारा ड्यूटी ये युद्ध करना है, तुम युद्ध करो, ये जो फल आने वाला है वो फल भगवान देगा, आपको देखने का जरूरत नहीं है। इसलिए तो मैं आप सब लोगों को मैं यही अपील करना चाहता हूँ, अपना ड्यूटी क्या है, लाइसेंस लेने के बाद बीमा करने का अपना ड्यूटी है। लेट अस ऑल वर्क, लेट अस ऑल डिस्चार्ज आवर ड्यूटीज प्रॉपरली। ये पूरा इंश्योरेंस हर एजेंट, हर इंसान को भारत देश में 100 करोड़ पॉपुलेशन का जब इंश्योरेंस करेगा तब भारत भी बढ़ेगा, LIC भी बढ़ेगा और एजेंट का इनकम भी बढ़ेगा
और एजेंट का फैमिली भी स्ट्रेंथन हो जाएगा। जब भारत को नहीं, LIC को दुनिया में किसी को ताकत नहीं रहेगा इसको टच करने के लिए। सो फाइनली आई विल टेल यू, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ऑल पूरा धर्म जितने भी है आप छोड़ने के बाद आपके पास जो ईगो है, अगर वो ईगो को अगर छोड़ के जो मेरे को श्रवण जो शरण पे आएगा, तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोल रहा है आपके जितना भी है धर्म वो सब पूरा छोड़ के, आपके पास जो ईगो है वो भी छोड़ के, जब श्री कृष्ण भगवान के पास आप आएगा, जब कृष्ण भगवान ने आपको मोक्ष प्रदान करेगा, वो मोक्ष देने के लिए फाइनली LIC है, लियाफी भी है, ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, दे आर ऑल गोइंग टू गिव द मोक्षा, not in the shape of the moksha like that which you are expecting, in the shape of the giving more financial strength to all the insurance agents in the country. लास्ट में एक ही बात बोलता हूं, हतो व प्राप्यते स्वर्गम जित्वा वे भोक्ष्यसे महिम तस्मा दुष्टिंत कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। लास्ट में अर्जुन को कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने बोल रहा, अगर कृष्ण अर्जुना अगर आपको ये युद्ध में लड़ना चाहिए, अगर ये युद्ध में लड़ते लड़ते हुए अगर आप मर गया तो कोई चिंता करने का जरूरत नहीं। जो कुरुक्षेत्र में आप नहीं, कोई भी युद्ध करते करते मर जाएगा, इसको स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। अगर नहीं तो अगर युद्ध करते करते सब लोगों को मार के अधर्म से निकाल के धर्म जो आप करेगा, जब आपका विजय हो जाएगा, जब भी आपको ये रह जाएगा, ये हस्तिनापुर राज आपके पास आएगा, यू कैन रूल द कंट्री। सो अगर मर भी गया, अगर जीत भी गया, आपको हस्तिना आएगा। तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूं फ्रेंड, अपन पूरा मिलके काम करेंगे। अगर काम करें तो सक्सेस होगा, एंजॉय करेंगे, सक्सेस नहीं होगा डोंट वरी, बट अपना कमीशन तो बढ़ जाएगा। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर टेकिंग मच टाइम in this session. I really compliment and extend my sincere thanks to the organizers for giving this opportunity. Thank you one and all, thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद चारी सर, एक्सीलेंट सेशन, और ये आज बहुत जरूरी था। कुलदीप बोलिया सर ने बड़ी कृपा की है कि आपको आज हमसे कनेक्ट करवाया, बहुत धन्यवाद। और राजेश, बहुत सारे लोग FPRT से जुड़ने के लिए कह रहे हैं, बहुत लोग लियाफी से जुड़ने के लिए कह रहे हैं। मैंने ग्रुप में व्हाट्सएप का वो डाल दिया लिंक, जो ज्वाइन करना चाहता है ज्वाइन कर सकता है। मैं दोबारा लिंक डाल देता हूँ व्हाट्सएप का, ये डाल दिया मैंने। जो लोग FPRT ज्वाइन करना चाहते हैं उस व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक करें, आप जुड़ जाएंगे। और लियाफी के लिए डॉक्टर कुलदीप बोलिया भी कुछ कहना चाहें तो वो भी बात कह दें। मैं तो अभी यही कहना चाहूंगा कि 3 महीने के लिए हमने एक एजुकेशनल प्रोग्राम दिया हुआ है। मैं आज आपके ग्रुप पे हमारे एजुकेशन में क्या डिमांड्स है और क्या हमारा प्रोग्राम है वो डाल दूंगा। 5 तारीख जो अभी आ रही है, हमने रेस्ट डे रखा है, क्योंकि LIC हमारे लिए कोई बहुत ज्यादा अच्छा काम नहीं कर रही। हम लोग रोज उनसे झगड़ रहे हैं, हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हमारे को ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट वो दे, इंटरनली वो सपोर्ट नहीं कर रही हैं। तो 5 तारीख को हमने रेस्ट डे रखा है। मेरा निवेदन है कि 5 तारीख को कोई नया बिजनेस उसमें ना डालें, किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस ना करें। और उस प्रोग्राम में हमने सब कुछ बताया है। जितने भी कन्वेंशन है वो हम अटेंड नहीं करेंगे। कंपटीशन जो LIC निकाल रही है डे टू डे, जो एनुअल कंपटीशन या क्वार्टरली आ रही है, उसको छोड़कर डे टू डे कंपटीशन जो आ रहे हैं उस पर हम पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, क्योंकि उसमें एजेंट से ज्यादा इंसेंटिव ऑफिसर्स को मिल रहा है। एक पॉलिसी एजेंट करता है, उस पे अगर 11 पॉलिसी का कंपटीशन निकला है 2 दिन का, तो एजेंटों में से 10 एजेंट वो 11 पॉलिसी कर पाते हैं, 90 जो नहीं कर पाए उनकी टोटल पॉलिसी जुड़ के ABM, BM, SBM, SDM, MM तक को सबको इंसेंटिव मिलता है। तो वो कंपटीशन जो 1 दिन 2 दिन का निकलता है वो हमारे लिए नहीं, ऑफिसर्स के लिए निकलता है। इसलिए हमने उसका बायकॉट किया है कि हम 1-2 दिन वाले कंपटीशन के दिन बिजनेस नहीं करेंगे, उससे नेक्स्ट डे करें या उससे पहले करें, ताकि मैनेजमेंट को समझ में आए कि एजेंटों का नुकसान करने से कितना नुकसान उनका भी होने वाला है। बहुत अच्छा चीज मैं आपके ग्रुप पे डाल दूंगा, अगर आपको उचित लगे तो आप अपने ग्रुप में डालिए सर, डालिए सर। थैंक यू वेरी मच। आइए शांति पाठ करते हैं। राजेश भैया शांति पाठ प्ले करो।
शांति